Okay, uh, so let me share some interesting slides. Let me share, and I think now you can see my screen. And let me go to the view, and then I go to the slideshow. So now it's loading, and now you can see me also a little bit, and also the slides. So even though I'm not very well visible, but you can see me. Okay, so the topic today is going to be probability, and my name is AB Sir, and I'm BTech from IIT Delhi, and I've also studied in Europe and America. So the topic is for having a quick idea of what the basics of probability is, and we'll deep dive into the problems in some of the session. But for this session, I'm going to teach you some of the concepts of probability. So what is probability that comes to everybody's mind is that probability of an event is how likely the event can happen. It is a measure of the chance that the event will occur as a result of an experiment, or if not an experiment, something is happening. Okay, so I'm going to use English and Hindi to make you understand what this topic is. So अगर कुछ हो रहा है तो उसको हमें समझना है अगर कि कितनी संभावना है कि वो दोबारा होगा या ऐसे ही सिचुएशन में वो फिर से होगा, तो हम किसी फिनोमेना को देखते हैं, we try to understand how it is happening and we try to give a numerical understanding to it. Okay, this is like a rough idea of what probability is. Okay. So it is essentially a number between 0 and 1. It can be 0, it can be 1, and a number in between. When it is 0, then it means that it is unlikely the event is going to happen. And if it is 1, then it is definitely it is going to happen. But most of the situation, events are between 0 and 1. Okay. Although the definition includes 0 and 1, but it is never a negative number. It cannot be less than 0, and it can never be more than 1. You have to keep in mind. If your calculations, अगर कुछ भी आपने जो गणित लगाया उसके बाद अगर नंबर 0 से कम आ गया, नेगेटिव आ गया, या 1 से ज्यादा हो गया, तो समझ जाइए कि आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया या आपका कंसेप्ट कुछ रॉन्ग है. Okay, it has to be between 0 and 1. The probability of an event is the ratio of the numbers of observation of the event to the total number of observations. ये एक बेसिक हो गया. अगर मान लीजिए आपने एक डाई फेंका, डाई जो होता है ना, जैसे पासा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, शकुनी मामा फेंकते थे, ठीक है, तो उसमें जितनी भी संभावना है, अब शकुनी मामा का डाई कितना फेयर था नहीं फेयर था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट कोई भी चीज का होने का मान लीजिए कि वो डाई जो है हर डायमेंशन से इक्वल डेंसिटी पे है, इक्वल उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब जगह बराबर है, ठीक है, और हर जगह वो 1 से लेकर के 6 तक प्रिंटेड है, तो हर नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो सकते हैं, 6, तो 1/6 होगा किसी भी नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी, 1 का या 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, अगर वो 6 नंबर वाले डाई, अगर कोई और तरह का डाई है, ठीक है, पासा जो बोलते हैं, देन यू हैव टू सी हाउ मेनी इवेंट्स. तो डाई के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कैसे होता है, ठीक है, बट इन रियल लाइफ ये सेम सिचुएशन विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रियल लाइफ, ठीक है. फॉर एग्जांपल, कोई आप कहीं पे आप किसी के एम्प्लॉय के आने का वेट कर रहे हैं, ओके, यूजुअल रिपोर्टिंग टाइम कंपनी 9 बजे बताया हुआ है, लेकिन 9 बजे एग्जैक्टली या 9 बजे से ठीक पहले आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितनों की कितनी होती है, वो आप उनके आने की ये पहले का रिकॉर्ड देख करके बता सकते हैं. ज्यादातर लोग 9 to 10 के बीच में ही आएंगे, 99%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल एट रैंडम टू कम बिफोर 10 o'clock वुड बी close to 99% for most of the people. कुछ लोग ऐसे भी होंगे who will come at 10:30. If someone comes at 11 o'clock,
you will get a notice, भैया you are very late, you have to either work overtime, explain your reasons if there is something very crucial happening in your life, अगर सब कुछ हो रहा है तो उस तरह से हम इसको मतलब then it comes to management. ओके और कितनों की प्रोबेबिलिटी है कि वो 12 बजे आएंगे जबकि रिपोर्टिंग टाइम 9 o'clock है. मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ दे कमिंग एट 12 o'clock would be close to zero, not zero but very very close to zero. And what is the event, what is the likelihood कि कोई भी एम्प्लॉय 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया वो दोपहर के 3 बजे 4 बजे या 5 बजे आए, शाम के 5 बजे आए, मे बी वेरी क्लोज टू जीरो, even more closer to zero, but it will never be negative. ठीक है, तो इस तरह से जो हम यहाँ पे हम जो IIT JEE या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कोर्स में प्रोबेबिलिटी बताते हैं, दे आर टॉट बाय मींस ऑफ दीज डाई एग्जाम्पल और बॉल एग्जाम्पल, बट दैट डजंट मीन कि those problems are limited to only these situations. These are example toy problems for making you understand. Eventually, when you go higher in your career, the same problems shape up in real life. Okay, maths is a way to understand the real life business cases and engineering problems. Okay, more in business cases, obviously in engineering as well, but maths is a way to teach you these things so that later on, when you face similar kind of situation, you can translate those problems into one of these categories that you have learned and then try to solve it. तो प्रोबेबिलिटी में एक रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट फिनोमेना आता है. ओके, फॉर एग्जांपल अब कोई एम्प्लॉय मान लो 9 से 10 बजे आई है, ओके, और फिर वो चला गया कोई रीजन लेकर के, तो वो हाफ डे ब्रेक लेकर के फिर दोबारा आने का 12 से 1 बजे आने का प्रोबेबिलिटी इसका फिर से आ जाता है, वो वही सेम टू सेम, वो आपका रिप्लेसमेंट कैटेगरी में आ गया. ठीक है, इसको हम बॉल्स के माध्यम से समझते हैं दैट if you have some kind of bucket, बाल्टी है जिसमें ढेर सारे बॉल्स हैं अलग अलग रंग के, तो हम उसे निकालेंगे. मान लो 4 बॉल है और 4 अलग रंग के, लाल, हरा, नीला, काला. ठीक है, 4 रंग, 4 हम उसे निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, क्योंकि एक रंग का तो एक ही बॉल है और टोटल बॉल्स 4 है, तो 1/4. लेकिन निकाल के उसी बॉल को निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बाद में चेंज हो जाएगा, 1/4 नहीं रहेगा. अब वो क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे. ठीक है, लेकिन अगर मैं उस बॉल को निकाल दिया और दोबारा से रख दिया तो ये क्या हो गया आपका, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया ना, रिप्लेसमेंट हो गया है. ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी में आ गया आपका. तो ये विद रिप्लेसमेंट हो गया आपका, कि हमने निकाला और उसको विदाउट रिप्लेसमेंट किया तो अलग वैल्यू आ गया, और रिप्लेस कर दिया यानी कि दोबारा से उसको हमने रख दिया तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी फिर से 1/4 हो जाएगा. ओके, सो विद रिप्लेसमेंट इज वेरी सिंपल, बिकॉज जो आपका पहले सिचुएशन था, जो नंबर आपका कैलकुलेशन पहले आ रहा था वही बाद में आ रहा है, जितनी बार भी करें हर बार रिप्लेसमेंट आप कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो पहले तो एक प्रोबेबिलिटी देखना कि वो कितना वो निकला है कि नहीं निकला है. निकल गया तो उसका रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इस केस में. अब फिर से उस बॉल को निकालने का कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/4, तो उसका रहने का प्रोबेबिलिटी था, और निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3 ही बॉल है, एक रंग होगा तो 1/3, तो एक मल्टीप्लाई करके हम उसको आगे बढ़ते हैं. ओके, विल सी दिस प्रॉब्लम. अभी आई एम जस्ट गिविंग यू a rough idea of how these things are, or giving an overview of it. So whenever we say probability with replacement, this implies that the events that are taken in the probability are completely independent of each other. Okay. On the other hand, when we find probability without replacement, okay, this implies the event in the probability to be determined are dependent on each other. Okay, so then we talk about independent events and dependent events. Okay. अगर मैं मतलब कि एक बाल्टी में से जब ऐसा होगा कि मान लो रेड बॉल और ऑरेंज बॉल के बीच में हल्का सा ग्लू लगा हुआ है, या कुछ ऐसा होगा कि रेड बॉल निकालें
तो येलो बॉल जो है वो साथ ही साथ वो भी ऊपर कहीं पे बाल्टी में चिपक गया। तो क्या है कि रेड बॉल के निकालने से येलो बॉल का निकालने का संभावना डिपेंड कर रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने बॉल्स का एग्जांपल दिया। इन रियल लाइफ ऐसा हो सकता है कि मान लो दो एम्प्लॉय जनरली कारपूल करके आते हैं, लेकिन कभी कभी एक एम्प्लॉय मेट्रो ट्राम से भी आ जाता है, मेट्रो से या सबवे से आ जाता है। ओके, लेकिन कई बार 40-50% टाइम वो लोग आ रहे हैं एक साथ। तो यानी एक एम्प्लॉय का आने का टाइम अगर 9 से 10 है, तो दूसरे का भी आने का टाइम 9 से 10 के बीच में होने का संभावना लगभग लगभग कुछ प्रोबेबिलिटी से इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, कितना होगा वो कितना डिपेंडेंट है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दो लोग टोटली कभी कोई फोन इंटरेक्शन या कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना कारपूल कर रहे हैं, ठीक है, या और कोई रीजन नहीं है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। ओके, so the independent events are said to be independent only when the occurrence of one does not at all affect the occurrence of another. अब देखो व्हाट इज द कोरिलेशन, मतलब कि उन दोनों के बीच में क्या रीजन है, क्या कारपूल कर रहे हैं या फोन कॉल कर रहे हैं, या दोनों का एक ही प्रोजेक्ट है एक ही टाइम पे स्टार्ट होने का, या मीटिंग सेम है, कोई भी रीजन हो सकता है। we cannot get into the nitty gritty of the things, I mean into the finer details of the things। हम वो सब करने की जगह इतना जो रिसर्च करना पड़ेगा क्या है, उससे बचने के लिए सिंपल तरीका है कि यू सी द नंबर ऑफ इवेंट्स। अब व्हाट इज द रीजन दैट यू कैन, इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दैट फर्दर, बट सिंपली मैथमेटिकली वी कैन सी दैट इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो आप देखोगे कि कोई ज्यादा कोरिलेशन, यानी कि एक बंदा कभी 8 बजे आ रहा है तो दूसरा बंदा या बंदी दूसरा इंसान आपका 9 बजे आ रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिपेंडेंस हो तो आप देखोगे कि एक बंदा अगर एम्प्लॉय जो है वो अगर 9:15 में आ रहा है, तो हो सकता है दूसरा इंसान भी 9:15 या 16, 17, 18, 20 मिनट पे आएगा या आएगी। ओके, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, ये रियल लाइफ फिनोमेना है। ओके, लेकिन हम इसे जब समझेंगे इन IIT JEE और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वी विल understand this by means of toy examples, die example, or maybe balls as an example. So when two events are dependent on each other, it means that the occurrence of the first event affects the occurrence of the next event, which further affects the probability of the events. ठीक है, पीछे कारण क्या है वो हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, वो आपके मैनेजमेंट के इशू है। अभी हमारा पर्पस है कि हम मैथमेटिकली देखेंगे कि भैया है कि नहीं दोनों में कोई कोरिलेशन। ओके, so complementary events, the possibility that there will be only two outcomes which state that an event can occur or not occur. Okay, complementary events कहते हैं इसको, ये एक चीज होगा तो दूसरा चीज नहीं होगा। जैसे हेड टेल हो गया, ठीक है, सिक्का उछालेंगे तो वो जमीन पे गिरेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। अगर वो वैसा, अगर कोई आई मीन से कोई नॉर्मल सिक्का है, ठीक है, कोई फोल्ड सिक्का नहीं है। ओके, तो ये सिक्के के माध्यम से हमने बताया। वैसे ही आप एम्प्लॉय का केस देख लोगे तो एक इंसान या तो आएगा या नहीं आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गया। अगर आया है तो ऐसा नहीं है क्यों नहीं आया है, और नहीं आया है तो ऐसा नहीं है क्यों आया है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इनको समझना पड़ेगा। ये सारे बिल्टअप बने होंगे आपके इवेंचुअली व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि कोई इवेंट का आने का प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर सा है किसी का होने का प्रोबेबिलिटी। यानी कि कोई मान लो एम्प्लॉय जो है हफ्ते में 4 दिन ही आता है। ओके, 4 दिन आता है कंपनी में, एक दिन आता है, कभी कभी नहीं आता है, फिर आता है, फिर नहीं आता है, तो वो तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी 50% में कहता है। इक्वली लाइक ये हेड टेल्स में भी क्या है, सिक्का उछाला हमने, या तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों का 50% चांस है एक बार के उसके। ठीक है, अगर नॉर्मल वो है। इक्वली लाइकली इवेंट्स इसको कहते हैं कि सबका प्रोबेबिलिटी जो बराबर बराबर है। यहाँ पे 2 आउटकम है तो 50-50% जनरली पूरे, लेकिन कई चीज है कि इसमें 2 से ज्यादा आउटकम हो सकता है। सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो सैंपल स्पेस में वही है कि आपका फॉर एग्जाम्पल डाई है तो 6 आउटकम है, तो इक्वली लाइकली हो गए सारे 1/6 1/6 1/6, 6 वैल्यूज होते हैं तो इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका आपके मतलब कि आप मान लीजिए आप दिल्ली में भेज रहे हैं, आपको टूरिस्ट
कहीं पे टूर करना है आसपास, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली के आसपास 3-4 ही है जिन करके, आगरा हो गया आपका, ठीक है, जयपुर हो गया, वृंदावन हो गया आपका, ठीक है, या आप कहो तो चंडीगढ़ हो गया। तो 4-5 अगर शॉर्ट आप बोलेंगे कि देखिए भैया मुझे विद इन 200 किलोमीटर के रेडियस में देखना है टूरिस्ट स्पॉट क्या, तो वो 5-6 लोग ही, 10 मान लीजिए, 10 आपने स्पॉट कर लिया, तो किसी भी जगह जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/10 जस्ट ऑन दिस फैक्टर, रेडियस फैक्टर पे आ जाता है। ठीक है, तो बेस थ्योरम का काफी ज्यादा एप्लीकेशन आपका आगे चल करके डेटा साइंस में भी लगता है। बेस थ्योरम डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिलेटेड टू एनी कंडीशन, ठीक है ना। तो अगर ए एक इवेंट है, ए इवेंट यानी कि मान लो कि बॉस है जो कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है, तो बॉस को मैंने बी बोल दिया। ए यानी एलिस एक सेक्रेटरी है, ठीक है। अब सेक्रेटरी का काम जनरली तब होता है जब बॉस रहे, लेकिन कभी कभी सेक्रेटरी बॉस के एब्सेंस में भी मैनेजमेंट का काम करती है, जो काम है वो कर रही है, ठीक है। तो बॉस के आने से सेक्रेटरी का आने का प्रोबेबिलिटी कुछ और होगा, और नहीं आने से उसके आने का प्रोबेबिलिटी कुछ और होगा, ठीक है। तो उसी को हम ऐसे पी ए बीच में एक स्लैश दे दिया, फिर बी लिख दिया, यानी कि गिवन दैट सेक्रेटरी ए हैज कम or has this event has happened, that she has come, given that boss has also arrived, so A given B, ठीक है। यानी एलिस का आने का प्रोबेबिलिटी गिवन कि आज बॉस आया है विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जब तब हमने वो सारे सिचुएशन देखे जब एलिस और बॉस दोनों आए थे, उसका प्रोबेबिलिटी, यानी ये वो जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉस आएगा तो एलिस यानी कि सेक्रेटरी भी आएगी, ओके। तो बहुत 90% टाइम ऐसा होगा कि बॉस आया है तो सेक्रेटरी भी साथ में आई हुई है, ठीक है। तो ए एंड बी, तो 0.9 वहां पुट कर दिया हमने, ठीक है। गिवन ये फिर स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बॉस आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो हफ्ते में मैंने क्या बोला था हर दूसरे दिन आता है, ठीक है, 0.5 हो जाएगा उधर। तो प्रोबेबिलिटी की एलिस आई है, गिवन दैट बॉस हैज कम, ए गिवन बी विल बी इक्वल टू, इस केस में प्रोबेबिलिटी एलिस इंटरसेक्शन बी, यानी कि एलिस और बॉस दोनों आया हुआ है, दोनों आए हुए हैं, उसका प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला यहाँ पे 0.9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉस कमिंग इज 0.5, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.5, ओके, 0.45 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल बताया, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन को हम एंड भी बोलते हैं, ए आप इंटरसेक्शन बोल लो या एंड बोल लो, जैसा आपको सूट करे। लॉजिक गेट का एंड फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, लॉजिक गेट अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लॉजिक में आता है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी गिवन प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके। तो गिवन और बी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज ए स्लैश बी, और प्रोबेबिलिटी बी इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके। सो डिपेंडेंट इवेंट एक कॉमन इवेंट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ये आ गया। डिपेंडेंट इवेंट इज इक्वल टू कॉमन इवेंट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब क्या है आगे पीछे वो आपको ये याद रखना है, ए एलिस, एलिस बॉस करके याद रखेंगे, याद रखेंगे, ए गिवन बी, एलिस इज कमिंग व्हेन बी हैज आल्सो बीन देयर इज इक्वल टू ए एंड बी बोथ हैव कम, एलिस एंड हैज कम विद हर बॉस divided by the boss has come the probability, okay. So probability A and B is the probability of the condition and event is occurring when event B has already occurred, ठीक है ना, B has already occurred, यानी हमें पता है कि बॉस आया हुआ है, तो एलिस आई है कि नहीं आई है वो जानने के लिए मुझे पहले का डेटा लेना पड़ेगा, इसको हम कभी कभी एविडेंस भी बोलते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी जो है एविडेंस भी बोलते हैं, और फिर ये डेटा साइंस में पढ़ाया जाता है आगे, देखो मैंने आगे भी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट एंड इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। सो अगर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना,
तो इसको हम कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स भी कहते हैं। फॉर्मूला फाइंड द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स विद रिप्लेसमेंट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी भी होता है। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी को उल्टा कर दिया हमने, वही फॉर्मूला बेस फॉर्मूला का ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को हम कर देंगे क्या, बस वेरिएबल्स जो है उसको ऊपर नीचे कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड करने का, इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। इसी फॉर्मूले को ना, जो बेस फॉर्मूला था ना, उसी को रीओरिएंट कर दिया हमने। सेम चीज है, आप उसको याद रखो। अगर वो बेस फॉर्मूला बोलोगे तो वैसे आपको लिखने का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट आफ्टर द फर्स्ट इवेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ठीक है, इसलिए आपका सेम चीज है, बेस फॉर्मूला ही है, इसको फिर रीओरिएंट कर दिया आपको। तो रूल्स ऑफ एडिशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर दो इवेंट टोटली एक्सक्लूसिव है, दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, वो हमें पता है, इफ वी नो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एक सैंपल स्पेस है, ए और बी दोनों में है, तो तो उसका प्रोबेबिलिटी ए और बी होने का प्रोबेबिलिटी ए निकाल लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं डाई से ही फिर से बताता हूँ समझाने के लिए। डाई में सिक्स नंबर्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज 1/6, एंड 2 का आना और 5 का आना एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, एक्सक्लूसिव है, दोनों टोटली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी कि मेरा नंबर 2 आए या 5 आए, क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक इवेंट प्लस दूसरा इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। और अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई जो इंडिपेंडेंटली उसका वैल्यूज आ रहा है और दोनों दोनों साथ आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड लगाया ए इंटरसेक्शन सेम। Rules of multiplication for two events A and B, if their probabilities are written as probability A, probability B, then the rules of addition can be written as rule for mutually exclusive event, probability A and B is equal to 0. Rules of independent, ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, और नहीं लगाया यहाँ पे, एंड लगाया, ठीक है, ये हो रहा है साथ में, ये हो रहा है, दोनों चीज आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, दोनों आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए, ये आपका फिर से बेस थ्योरम को ही हमने, ये कंडीशनल जो था ना आपका डिपेंड, इसी को हमने रीराइट कर दिया दूसरे तरीके से। डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब आप जब भी आपको डिपेंडेंट इवेंट्स बोलो ना, आपको बेस थ्योरम जो मैंने पहले एलिस और बॉस करके समझाया, वैसे उसी पे चले जाना है, उसको भले ही हमने इधर उधर करके क्वेश्चन को उधर कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, वैसे करके लिख दिया, ठीक है। इफ 3 इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारा इंटरसेक्शन जितना भी कॉमनैलिटी है उसको डिलीट करेंगे, ओके। तो कॉमनैलिटी आपका प्रोबेबिलिटी ए बी सी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, बी इंटरसेक्शन सी हटा दिया, और ए इंटरसेक्शन सी हटा दिया, 3 बार जब हटा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि तीनों का एक कॉमन इवेंट होने वाला है वो भी हट जाता है, लेकिन वो होना जरूरी है, तो इसलिए हम उसको दोबारा से फिर ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको आप वेन डायग्राम से कभी देखोगे ना, या मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो एक ये ऐड करना आपको जरूरी होता है, क्योंकि आपने जब 3 बार डिलीट कर दिया, देखिए ए 2 बार हट गया, बी 2 बार हट गया, सी 2 बार हट गया, तो तीनों का एक कॉमन वाला पार्ट जो है उसको एक बार तो हमें डालना ही पड़ेगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार डालते हैं इसके लिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एसेंशियली एक इवेंट को कहते हैं कि एक इवेंट है वो रैंडम है, उसका रिलेशन है नहीं रिलेशन है मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हमें पता है कि ए बी सी जो है उनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है,
तो उसमें जितना भी इंटरसेक्शन वाला ना ए और बी या ए और बी और सी और बी और सी जितने भी इंटरसेक्शन वाले वो हमेशा जीरो होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी ऑलवेज जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज है आपके प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी सी। ठीक है, okay? And if there are three events A, B, and C, then at least two of them, at least two probably occur will be at least two A, B, and C occur. Then probably A, B का हम देखेंगे, B, C का देखेंगे, C, A का देखेंगे, और 2 टाइम्स हम इसको हटा देंगे। इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा इसको। वेन डायग्राम से आप समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। कि मान लो 3 इवेंट हो रहा है, हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 होना जरूरी है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का देखेंगे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, बी सी का देखेंगे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, और सी ए का देखेंगे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। ये तीनों लिखने से क्या होता है ना कि आपका ए बी सी, ए ए आपका 2 बार आ गया, बी आपका 2 बार आ गया, सी आपका 2 बार आ गया। ठीक है, तो दोनों 2 बार आ गया, तो सबको हटा, एक बार हम 2 बार इससे करके हटा देंगे इसको। वेन डायग्राम से आप ज्यादा समझ पाएंगे। एग्जैक्टली 2 ऑफ ए एंड बी एंड सी अकर्स, एग्जैक्टली अब हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको 3 बार हटा रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन वाला पार्ट है ना वो 3 बार आता है, 1 बार 2 बार 3 बार। पिछली बार हमने क्या किया था कि सिर्फ 2 ही बार हटाया था, इस बार हम 3 बार हटा दे रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी अकर्स, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, सबका एक एक बार का प्रोबेबिलिटी ले लिए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी भी ले लिया हमने इसका, और माइनस कर दिया 2 बार जो भी है, और 3 बार ये कर लिया। तो ये सब फॉर्मूला वेन डायग्राम में समझ सकते हो। लेकिन बेटर होगा कि ये जब भी प्रॉब्लम है ये बोलेंगे ना एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस हैपेंस, एग्जैक्टली 1 ऑफ दिस थिंग हैपेंस, इफ इट टेल्स यू लाइक दैट, देन इट इज बेस्ट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज मच एज पॉसिबल। और फॉर्मूला याद करने के लिए इट इज बेस्ट कि एक बार आप वेन डायग्राम बना करके कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो बी के आने से ए को फर्क नहीं पड़ रहा है, ए के होने से बी को नहीं फर्क पड़ रहा है, तो जो आप प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी विल ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा बी आया नहीं आया। यानी एलिस एलिस आ रही है या नहीं आ रही है बॉस के आने से, that has boss has no influence on over Alice to be present or not. That means that Alice and B boss का maybe इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जो भी उसका अंडरलाइन फिनोमेना है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी, बस इसको हम मैथमेटिकली पुट कर रहे हैं कि भाई बॉस आ रहे हैं नहीं, टिपिकली ऐसा होगा नहीं। लेकिन मान लो कोई और सिचुएशन तुम पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस है, एक में 2, एक को मैंने उछाला 2 आया और दूसरे को उछाला मैंने 4 आया। तो पहले वाले डाइस में 2 आया, उसका दूसरे डाइस को उछालने से 4 आया, उससे कोई लेना देना तो है नहीं ना यूजुअली, टिपिकली। अब उसमें मैग्नेट लगा हो, जो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, कुछ फिजिक्स लगा हो, तो यू नो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट टिपिकली आप देखो कि तो दो डाइस है, या डाई बोल रहे हैं आप, ठीक है, डाई बोलते हैं जनरली, हम तो अपने आम भाषा में डाइस बोलते हैं, लूडो का डाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक को उछाला मान लो 3 आया, दूसरे को उछाला उसमें प्रोबेबिलिटी की वो 5 आएगा, वो पहले वाले के प्रोबेबिलिटी के 3 आने से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड डाइस कमिंग आउट टू बी 5 as the outcome has got nothing to do with the first outcome. ठीक है, so in this case probability a probability 3 given probability 5 given 3 is equal to probability 5 of the second dice. ठीक है, वैसे ही आप इसको करेंगे, और probability of a intersection b जो यानी a भी होगा और b भी होगा, वो दोनों इंडिपेंडेंट होगा, probability a into probability b. So independent probability rules are the 2 events are known to be independent events. The occurrence of one event will have no effect on the probability of the other one. If A and B are 2 independent events and PA and PB are the probabilities, then the independent probability rule of multiplication कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अभी यही बताया आपको कि भाई एक में 2 आया, एक से 5 आया, या एक में 3 आया, एक में 4 आया, इन दोनों में इंडिपेंडेंट हम वैल्यूज लेके सिंपली प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/6 into 1/6। प्रोबेबिलिटी की पहले में 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, 1/6 into 1/6, both are independent. So this can be then used for 2 events A and B. The probability that exactly one of the event A B occurs is given by
this phenomenon. Okay, so that ends the lecture for today, and we we will talk more about प्रॉब्लम्स. देखिए एक बार थ्योरी पढ़ाने से आपको एक अच्छा थोड़ा सा दिमाग में पकड़ बनता है. इसी को प्रॉब्लम को के माध्यम से जब मैं समझाऊंगा ना, तो आपको वो प्रॉब्लम एकदम रिलेट रिलेट करके आप बिल्कुल दिमाग में बैठ पाएगा. तो ये आपका एक जनरल क्लास था. ठीक है, और ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास. दिस इज एबी सर. थैंक यू, बाय बाय.